Hello, friends. I welcome you once again for the sixth poem of class ninth, A Legend of the Northland. A Legend of the Northland is composed by Phoebe Cary. Phoebe Cary is the poet of this poem, and in this poem, Phoebe Cary is going to describe about a legend. What is legend? Legend means popular, traditional story. Of the Northland means Northland. In Northland की एक प्रचलित कहानी. And this is in the form of ballad. There are many forms of poetry. So there is also a form that is ballad. Ballad is a form of poetry in that there is a narrating story in the form of stanza. लेजेंड ऑफ द नॉर्थलैंड एक बैलेट है. और बैलेट क्या होता है? बैलेट एक कविता होती है जो किसी कहानी को कविता के रूप में, स्टेंजा के रूप में लिखा जाता. इन दिस पोएम वी विल फाइंड आउट अबाउट टू पर्सन, दैट इज अबाउट अ सेंट पीटर एंड अबाउट अ लेडी, एंड दैट लेडी इज टू ग्रेडी. Lady is too greedy that she did not offer too much sufficient food to Saint Peter. So in this poem we will find out a moral lesson that we should not be greedy, and greedy is not a good thing. So let us start this poem. Away, away in the northland where the hours of the day are very few and the nights are so long in the winter that they cannot sleep them through. The poet is describing about a place that is the northland where the day hour is very short and the nights are too long and in the winter, and the people are unable to sleep the whole night because the nights are too long. बता रहा दूर, बहुत दूर नॉर्थलैंड, जहाँ पर दिन छोटे और रातें लंबी होती है ठंडियों में, वहाँ पर पूरी रात सोना बहुत कठिन होता है. दे कैन नॉट स्लीप दम थ्रू, और पूरी रात सो नहीं सकते. Where the harness the swift reindeer to the sledge when it snow. जब बर्फ गिरती है, reindeer is a type of animal that is found in the snowy province, snowy states. जो बर्फीले क्षेत्र होते हैं वहाँ पर एक जानवर पाया जाता है रेंडियर. लोग उसकी सवारी करते हैं. है तो उसी रेंडियर की बात कर रहा है यहाँ पर. वेयर दे हार्नेस द स्विफ्ट रेंडियर टू द स्लेज व्हेन इट स्नो एंड द चिल्ड्रन लुक लाइक अ बियर्स कप्स इन द फनी फ्यूरी क्लाथ्स. जब बर्फ गिरती है तो बच्चे भी किसकी तरह से, दे आर लुकिंग लाइक द बियर कप बिकॉज दे वियर, वो क्या पहन लेते हैं, दे वियर fury and funny type of clothes and they are looking like a bear cub. They tell them a curious story. वहाँ पर एक बड़ी विचित्र, बड़ी उत्सुकता वाली कहानी बताई जाती है. I don't believe it's true. मुझे विश्वास नहीं होता कि ये कहानी सत्य है. And yet you may learn a lesson if I tell the tale to you. लेकिन यदि मैं कहानी बता दूँ आपको, कहाँ की, उस नॉर्थलैंड की, तो आपको क्या, आपको एक मॉरल मिलेगा, एक शिक्षा मिलेगा, एक लेसन मिलेगा. सो द पोएट इज सेइंग दैट देयर इज अ पॉपुलर स्टोरी इन द नॉर्थलैंड एंड बट इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू बिलीव. बट ही इज सेइंग दैट इफ आई टेल यू देन यू विल गेट अ मॉरल, देन you will get a lesson from this story. Now he is going to start the story that once when the good Saint Peter lived in the world below and walked about it preaching just as he did, you know. एक बार जब सेंट पीटर इस पृथ्वी पर रहते थे, आए और इधर उधर घूमा करते थे और लोगों को क्या क्या करते थे, उपदेश दिया करते थे. प्रीचिंग मीन्स उपदेश, अच्छी अच्छी शिक्षाएं दिया करते थे, ज्ञान की बातें बताया करते थे. जस्ट एज ही डिड, यू नो, आपको मालूम है, you know about this, that there once upon a time Saint Peter came on the earth and he was preaching, he was wandering and he was roaming here and there and he was preaching to the people. At that time what happened, he came to a door of cottage, and at that time he came to the door of a cottage and traveling around the earth where a little woman was making cakes and baking them on the earth. Heath.
So the poet is telling that when Saint Peter came on the earth and he was roaming, and during his roaming, what happened? He came to a door. He came to a door, and uh, what happened? And he knocked the door, and there was a woman inside the cottage, and she was making cake, and for that she was baking the cake on the hearth. Hearth means अंगीठी, अंगीठी जिस पे आग जलाए रहते हैं, जिस पर वह क्या कर रही थी? केक को सेक रही थी। यानी घूमते हुए एक झोपड़ी तक पहुंचे, दरवाजे को खटखटाया, उसमें एक औरत थी। उस औरत क्या कर रही थी? केक बना रही थी और उसे अंगीठी पर बेकिंग कर रही थी, सेक रही थी केक को। And being faint with the fasting for the day was almost done, he asked her for her store of cakes to give him a single one. The poet is saying that what happened when he reached to the door of that lady, and that Mr. Saint, that Peter was very hungry, because whole day he did not eat something, so he was fasting, and it seemed that he will be faint. ऐसा लग रहा था कि वो मूर्छित हो जाएंगे भूख से। So what happened? Almost done, पूरा दिन बीतने को था, and he did not eat something, और कुछ वो खाए नहीं थे। So he asked her for her store of cakes. इसलिए उन्होंने क्या किया? क्या मांगा? उनसे उस स्टोर से थोड़ा सा केक मांगा कि कम से कम सिंगल वन, थोड़ा सा सिंगल ही पीस दे दे, लेकिन कुछ खाने को दे दे। So she made a very little cake, but as it baking lay, she looked at it and thought it seemed too large to give away. और जब उस लेडी ने इनके लिए केक बनाया और उसको क्या किया? बेकिंग के लिए रख दिया, सेंकने के लिए। इनके लिए केक बनाया एक और उसको सेंकने के लिए रख दिया। शी लुक्ड एट इट, और जब उसने देखा, एंड थॉट इट सीम टू लार्ज टू गिव अवे, तो देने के लिए लगा कि ये तो बहुत ज़्यादा है, बहुत बड़ा है। इट इज़ आवर नेचर और हैबिट दैट व्हेन वी हैव टू गिव समथिंग इट सीम्स इट इज़ टू मच, बट व्हेन वी हैव टू रिसीव देन इट सीम्स दैट इट इज़ वेरी लेस। ये मानव का नेचर है कि जब कोई चीज़ हम देते हैं तो लगता है कि अरे यार हमने बहुत दे दिया, हमने तो बहुत दे दिया इन्हें। लेकिन कोई चीज़ हमें लेना होता है, रिसीव करना होता है, तो हमको लगता है यार बहुत थोड़ा सा दिया। द सेम थिंग इज हैपनिंग विद द लेडी आल्सो, दैट्स सो शी मेड अ वेरी लिटिल केक, बट एज इट बेकिंग ले, शी लुक्ड एट इट एंड थॉट इट सीम्ड टू लार्ज टू गिव अवे। शी मेड अ केक and she put it to bake, and what happened? And when she decided to give this cake to whom? Saint Peter, then it seemed that it is too much, that it is too large. So after that what happened? Then she took a tiny scrap of dough and rolled it flat. फिर क्या किया उसने? थोड़ा सा दूसरा डफ लिया और उस डो को फिर से रोल किया और उसको फिर से बनाने लगी ताकि क्या हो सके? एंड बेक्ड इट थिन एज अ वेफर, बट सी कुड नॉट पार्ट विथ दैट, और उसको बहुत पतला वेफर की तरह से पतला कर दिया उस टुकड़े को। बट व्हाट हैपेंड? बट सी वाज नॉट सेटिस्फाइड, इट सीम दैट इट इज़ टू मच, इट इज़ टू लार्ज टू गिव। आफ्टर दैट देन सी टूक अ टाइनी स्क्रैप ऑफ डो and rolled it flat and baked it within as a wafer, but she could not part with that. उसे पतला कर दिया गूंथ गूंथ के, लेकिन फिर भी अभी भी वह देने के लिए संतुष्ट नहीं है। फारसी सेड, उसने अपने आप से कहा, माई केक दैट सीम टू स्मॉल व्हेन आई ईट ऑफ दम माई सेल्फ, यही केक जब मैं खुद खाती हूँ तो ये बहुत छोटा दिखता है। आर येट टू लार्ज टू गिव अवे, सो सी पुट दम ऑन द सेल्फ, और जब देना है तो यह बहुत ज़्यादा लग रहा है, बहुत बड़ा लग रहा है, और उसको अलमीरा पर सेल्फ पर रख दिया। देन गुड सेंट पीटर ग्रीव एंग्री, फॉर ही वॉज हंग्री एंड फैंट, एंड श्योरली सच अ वुमन वॉज इनफ टू प्रोवोक अ सेंट। देन व्हाट हैपेंड? देन गुड सेंट पीटर ग्रीव एंग्री, बहुत क्रोध आया सेंट पीटर को बहुत क्रोध आया, और वो हंग्री भी थे। एंड हंग्री मैन इज एंग्री मैन, एक भूखा आदमी हमेशा क्रोधित, उसे चिड़चिड़ापन और गुस्सा लगता ही है। सो हंग्री मैन इज एंग्री मैन, एंड व्हाट हैपेंड? सेंट पीटर बिकेम एंग्री एंड श्योरली सच अ वुमन वाज एनफ टू प्रोवोक अ सेंट, और यह औरत
प्रोवोक मीन्स उकसाना, भड़काना उनके क्रोध को और बढ़ा रही थी। And he said, "You are far too selfish to dwell in the human form, to have both food and shelter and fire to keep you warm." उन्होंने कहा कि you are far too selfish, तुम बहुत ज़्यादा स्वार्थी हो, तुम अत्यधिक स्वार्थी। You are too selfish to dwell in the human form, एक मानव के रूप में रहने के लायक नहीं हो, तुम बहुत स्वार्थी हो। To have both food and shelter, तुम्हें ना तो फूड मिलना चाहिए, ना तो शरण मिलना चाहिए, ना तो तुम्हें भोजन मिलना चाहिए, ना रहने का स्थान मिलना चाहिए। एंड फायर टू कीप यू वार्म, ना तुम्हें अपने आप को गर्म रखने के लिए ये आग मिलनी चाहिए। यू आर नॉट एबल फॉर दैट, यू आर वेरी सेल्फिश, यू आर टू सेल्फिश, यू आर नॉट एबल टू लिव इन द फॉर्म ऑफ ह्यूमन। नाउ यू शैल बिल्ड एज अ बर्ड्स डू। उन्होंने उसे श्राप दे दिया और he cursed him, and what he said, that you shall build as the birds do and shall get your scanty food. अब तुम वैसे जाओ जैसे चिड़िया करती हैं वैसे तुम करोगी और तुम्हें थोड़ा सा भोजन मिलेगा। by boring and boring and boring all day in the hard dry wood, और दिन भर तुम क्या करोगी, बस लकड़ी में छेद करती रहोगी, बोरिंग करती रहोगी और बस यही तुम्हारा काम होगा और तुम्हें खाने के लिए बस थोड़ा सा मिलेगा। नाउ यू शैल बिल्ड एज द बर्ड्स डू एंड शैल गेट योर स्कैंटी फूड बाई बोरिंग एंड बोरिंग एंड बोरिंग ऑल डे इन द हार्ड ड्राई वुड। सूखी लकड़ियों को तुम और कठोर लकड़ियों को पूरे दिन बस क्या करती रहोगी, उसमें छेद करती रहोगी, तुम्हें खाने के लिए बहुत थोड़ा सा मिलेगा। देन अब सी वेंट थ्रू द चिमनी, उस घर में जो चिमनी जिससे आग का धुआं निकलने के लिए घरों में बनाया जाता है, उस चिमनी से वह बाहर निकली। नेवर स्पीकिंग अ वर्ड, और वह कुछ बोली नहीं, बिना कुछ बोले उससे बाहर निकली। इट मीन्स उन्होंने उसे शाप दे दिया। ही कस्ड हिम एंड सी बिकेम अ बर्ड एंड बीइंग अ बर्ड शी फ्लू फ्रॉम द चिमनी एंड आउट ऑफ द टॉप फ्लू अ वुड पिकर, और उड़कर वह ऊपर क्या बनी, वुडपेकर बन गई। वुडपेकर यू नो ए टाइप ऑफ बर्ड, और वह वुडपेकर जिसको हम कठफोड़वा कहते हैं, वह कठफोड़वा चिड़िया बन गई, वुडपेकर बन गई। फारसी वाज चेंज टू अ बर्ड, और किस रूप में हो गई, एक चिड़िया के रूप में हो गई। और क्या बन गई, वह एक वुडपेकर बन गई। बिकॉज सेंट पीटर कास्ट हिम, सेंट पीटर ने उसे क्या कर दिया था, शाप दे दिया था। सी हैड ए स्कारलेट कैप ऑन हर हेड, और वह एक टोपी लगाए हुई थी एज बीइंग अ लेडी, एंड दैट वाज लेफ्ट द सेम, लेकिन वो टोपी की तरह उसके केस, उसके सर पर केस उसी तरह से रह गए। एंड ऑल दैट रेस्ट ऑफ हर क्लॉथ्स वर बर्न, उसके कपड़े जल गए। ब्लैक एज अ कोल इन द फ्लेम, और उस आग में कोयले की तरह से काले हो गए। नाउ शी बिकेम द ब्लैक बर्ड एंड देयर इज ए स्कारलेट on its head and it became black, and every country school boy has seen her in the wood, और जंगलों में हर देश के बच्चों ने देखा होगा, स्कूल बॉय ने देखा होगा, किसे देखा होगा, इस वुडपेकर को जंगल में जरूर देखा होगा। where she lives in the trees till the every day boring and boring for food, और यह क्या करती है, लकड़ियों में छेद करती रहती है पूरे दिन और भोजन की तलाश करती रहती है। सो दिस इज़ द स्टोरी, इट इज़ द folk story, it is a traditional story. We can find out that in this story, in this poem, the poet wants to tell that how the result of the greediness is bad for everyone, whether it is a man or woman. And the lady who that she became so greedy, she did not give food to Saint Peter, and because of that she has to be a woodpecker. And in this story it is the only it is the legend, it is the traditional story only, that how we know about the woodpecker. And this story, this poem is very interesting also, and it gives us lesson also. So okay, thank you for this poem.